वो तो चाहती আলোর है कि तुम সন্ধানে टूट ইউটিউব जाओ, চ্যানেলে ভক্তদের समाप्त हो জন্য जाओ। আমার এবারের নিবেদন तुम्हारी शपथ কবিতা का क्या हुआ? কাঁটাতারের বেড়া। तुम्हें तो अंतिम सांस तक ভিডিওটি लड़ना है। দেখুন আর ভাবুন, मैं দেশের लड़ूंगा। জন্য যারা এত কষ্ট করে मैं हारूंगा স্বাধীনতা नहीं। এনেছেন তারা मुझे কি देश को পেয়েছেন स्वतंत्र कराना है। আর তাদের কি দিয়েছে এই मैं गोलू ভারতবর্ষের चलाऊंगा। মানুষ। অথচ হ্যাঁ, এই সমস্ত বীর मैं गोलू সন্তানেরা चलाऊंगा। না থাকলে ভারতবর্ষ কোনোদিন স্বাধীন হতো না। কিন্তু অবশেষে তারা কি পেল? ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখুন আর ভাবুন। ক্ষমতা পিছাসী হৃদয়হীন রাজনীতি ভারত মাতার Oh বক্ষ my মাঝে dear দিয়েছে Mr. Barrister, হিন্দু how are you today? জাতির कुछ মর্মান্তিক ज्यादा চির तकलीफ तो नहीं है যন্ত্রণার ना? কাটা তারের Mr. বেড়া। Barrister, मैं आपसे कुछ पूछना এপারে चाहता था। কাঁধে आप সন্তান তো आप नानी ওপারে गोपाल কাঁধে को মা, समझाते क्यों ওপারে नहीं কাঁধে है कि সন্তান वो তো सीधे এপারে रास्ते কাঁধে पे মা। आए और এই হলো হিন্দু भूखा दाल জাতির छोड़ दे, দেশ नहीं तो স্বাধীনের उसको মর্মান্তিক पेट लगा চির दी जाएगी। যন্ত্রণার People are being কাটা tortured তারের here বেড়া। inhumanly। স্বাধীনতা यहाँ তুমি कैदियों কি के साथ দিয়েছো এই হিন্দু জাতির पशुओं सा জন্য? व्यवहार हो रहा है। মুসলমানকে তো हिंदू দেশ मौत का দিয়েছো, जिम्मेदार कौन है? স্বাধীন वो ভাবে खुद अपनी মাথা मौत का উঁচু করে जिम्मेदार था। বিশ্ব মাঝে सारी दुनिया जानती है कि उसने সগৌরবে खुदकुशी कर ली, हाँ? আত্মপ্রকাশ क्यों করবার की? জন্য। तुम भी আর उल्हास की হিন্দুকে तरह তো पागल তার हो गया हो শত क्या? সহস্র কোটি तुम तो यही चाहते বছরের हो ঐতিহ্যবাহী कि सब लोग पागल हो সংস্কৃতিকে जाएं। ভেঙে চুরে तुम সর্বহারা अत्याचारी हो। করে দিয়ে হ্যাঁ? প্রতিষ্ঠা मेरा भाई করেছো बीमार है, বুক ভরা तुम उसे अस्पताल क्यों হতাশার नहीं भेजते? अब उसे মর্মান্তিক क्या हो गया চির है? যন্ত্রণার अरे मैंने कहा ना वो কাটা बीमार है। তারের किसने বেড়া। कहा कि वो बीमार है? डॉक्टर এপারে कहता है। কাঁধে সন্তান তো ওপারে কাঁধে মা, डॉक्टर ওপারে कौन কাঁধে होता है मिस्टर সন্তান তো बैरिस्टर? এপারে কাঁধে মা। मेरी এই जेल হলো में হিন্দু वही बीमार জাতির होता है দেশ जिसे স্বাধীনের मैं बीमार कहूँ, মর্মান্তিক हाँ? চির যন্ত্রণার কাটা তারের আচ্ছা। বেড়া। तो फिर तुम मुझसे नानी को হিন্দু নিধন বিতরণ ধর্মান্তরণ যেখানে তোমার দেওয়া দেশে বেরি। নিত্যকর্ম, नहीं बेचते? সেখানে তুমি अब করছো उसे তাদের क्या हो गया है, সংরক্ষণ, अरे मैंने कहा ना वो যার बीमार है। প্রতিফল किसने আল कहा कि কায়দা वो बीमार জঙ্গি है? আর আতঙ্কের डॉक्टर कहता है। বাতাবরণ। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, डॉक्टर कौन होता है মাস্টার मिस्टर দা সূর্য बैरिस्टर? সেন, বিনয় मेरी जेल বাদল में वही দীনেশ बीमार ক্ষুদিরাম, होता है जिसे বিনায়ক मैं দামোদর बीमार বীর कहूँ, हाँ? সাবারকার, ডক্টর শ্যামা প্রসাদ আচ্ছা। মুখার্জি, ছত্রপতি শিবাজি, तो मुझसे नानी को রাস कौन की বিহারী बात करने क्यों বসু, आए हो? যতীন্দ্রনাথ, মাতঙ্গিনী হাজরা, মিস্টার আরো ব্যারি, না কত ভারত মায়ের বীর পরাক্রমী সন্তানেরা अगर तुमने उस তাদের 16 बरस এই के क्रांतिकारी को আত্মবলিদানের बेच মধ্য लगाए, দিয়ে কি এই চেয়েছিল? तो हम सभी राजनीतिक কিন্তু তুমি कैदियों का করেছো खून खोल এদের उठेगा। অপমান, দিয়েছ बात हो হিন্দু जाएगा। জাতির মর্মান্তিক চির इस कांड যন্ত্রণার की কাটা जिम्मेदारी তারের सिर्फ বেড়া। आप पर होगी। ওপারে কাঁধে সন্তান कुछ भी তো करने এপারে से কাঁধে মা, पहले अच्छी तरह से এপারে सोच কাঁধে लेना। সন্তান তো ওপারে কাঁধে মা। এই হলো হিন্দু জাতির क्या देख रहा है? দেশ স্বাধীনের মর্মান্তিক चला ना। চির यही যন্ত্রণার तेरा काम है मिस्टर কাটা बैरिस्टर, कोलू তারের चला। বেড়া। बैरिस्टर को यही জাতির काम ভেদাভেদ, समझा देता है, समझा? যার कोलू चला तू। ঐতিহ্য, जिंदगी भर যার कोलू चला। গর্ব, हाँ? আর তিনি चला হলেন तू জাতির कोलू। পিতা। उसको भाषण सुनाता है আজ क्या? তার সেই বর্ণ कोलू चला। বৈষম্য जिंदगी भर तू कोलू রাজনীতিবিদদের चलाता প্রধান रहेगा, হাতিয়ার। समझा? हाँ? তখন তো তারা चलो। মুখে মুখে বলতো, इस बैरिस्टर का আর सारा আজ तेल মানুষকে निकालो। লোকের বশভূত করে বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে এসটি, এসসি, ওবিসি, এইচসি কাস্ট अगर आप इन लोगों को साथ সার্টিফিকেট लेकर দিয়ে मंदिर में दाखिल होंगे तो दंगा বিভাজন होने का खतरा করছে। है, इसलिए मैं आपको বিনায়ক आप मुझे সাবারকার लोगों से बात যার करने की জন্য अनुमति तो এত दे सकते हैं? করে এই সমাজকে কেবল আপনি মুঝसे বারবার बात कर বুঝিয়ে গেছেন अंदर जाइए। বর্ণ বৈষম্যকে দূর করে এক মহান হিন্দুস্তান গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। ठीक है। কিন্তু ভারত মাতার इन्हें এই रास्ता दो। হিন্দু বীর মহান इन्हें रास्ता दो। নেতার মহামূল্যবান কথা কেউ বুঝল না, দিয়ে গেল শুধু হিন্দু জাতির মর্মান্তিক চির যন্ত্রণার কাটা তারের বেড়া। এপারে কাঁধে সন্তান তো ওপারে কাঁধে মা, ওপারে কাঁধে সন্তান তো এপারে কাঁধে মা। এই হলো হিন্দু জাতির দেশ স্বাধীনের মর্মান্তিক চির যন্ত্রণার কাটা তারের বেড়া। ये আমার कैसी এই विडंबना है? কবিতাটা আরো ভালো লাগবে। अगर आप ऐसा समझ रहे পুরো हैं तो ভিডিওটা भूल कर रहे দেখুন हैं कि मैं अपने আর साथ মন इन দিয়ে लोगों को ভাবুন। इसलिए लाया हूँ বীর कि यहाँ সাবারকার इनका उद्धार সিনেমার অংশ বিশেষ नहीं, নিয়ে আমার এই इन्हें छूने से কবিতাটাকে इनका उद्धार বোঝাবার नहीं होगा। চেষ্টা করেছি মাত্র। उद्धार तो आप लोगों का होगा, इन्हें गले लगाकर आप अपने पापों से मुक्त होंगे।
हमें अपना उद्धार नहीं करना है। हम उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं करने देंगे। हम में और इनमें अंतर है। कोई अंतर नहीं है, आप भ्रम में हैं। जातिगत ऊंच नीच में विश्वास करना छोड़िए। आप हिंदू हैं कि हिंदू? आपने क्यों अपने धर्म को केवल कपड़ों, जनेऊ, चोटी और गौमूत्र तक सीमित कर रखा है? यह हिंदुत्व नहीं है। हिंदुत्व कागज पर लिखी हुई पोथी नहीं है जो कागज के फटने से चूर चूर हो जाएगी। हिंदुत्व महान जाति का जीवन दर्शन है। अपने भीतर की शक्ति को पहचानिए। अपने धर्म की महानता और गरिमा को कम मत कीजिए। हमें उपदेश मत दो। हमें आपकी कोई भी बात नहीं सुननी है। क्या इसलिए कि सच्ची बात कड़वी होती है? आप लोग कुत्ते को छूते हो, सांप को दूध पिलाते हो, चूहे का खून पीने वाली बिल्ली को अपने साथ बिठाकर खाना खाते हो, लेकिन अपने ही जैसे इन मनुष्यों को, जो तुम्हारे समान राम और कृष्ण के भक्त हैं, छूते भी नहीं। ये क्या हो गया तुम्हें? जागो, सोचो, समझो। 4 वर्णों की व्यवस्था ने हमारा सर्वनाश कर दिया है। इसे त्याग दो, इस विष का नाश कर दो। सभी युगों में एक आचार धर्म टिक नहीं सकता। इसे समय अनुसार बनाओ। अपने ही जैसे 7 करोड़ भाई बंधु, जिन्हें तुम निम्न वर्ग का कहते हो, अगर दूसरे धर्म में चले गए तो हिंदू धर्म के लिए 7 करोड़ शत्रुओं का ही निर्माण होगा। इस लज्जाजनक स्थिति को बदल दो। अपनी भूल सुधार लो, नहीं तो समय आएगा कि तुम क्षमा के पात्र भी नहीं रह जाओगे। यह विट्ठल का मंदिर है। विट्ठल मंदिर में ही नहीं, सबके दिलों में भी है। जब वे दिलों में हैं, तो उनके चरणों में जाने का अधिकार इन्हें क्यों नहीं? क्या ये हिंदू नहीं? क्या इनकी रगों में आप जैसा लहू नहीं? आप तो उस महान धर्म के अनुयायी हैं जो मानता है कि सब में एक आत्मा है। आपने अपनी दृष्टि, अपनी सोच इतनी संकीर्ण कैसे बना ली? आपकी भक्ति, आपके ज्ञान और आपके कर्म का क्षेत्र इतना छोटा कैसे हो गया? विट्ठल की दया ममता तो असीम है, अनंत है। वे तो सबके हैं, वे सबको बुला रहे हैं। अपने इन बंधुओं का रास्ता रोककर विट्ठल की सर्वप्रियता का अपमान मत करो। इन्हें भी उनके चरणों में आने दो। ये भी उनकी दया ममता के पात्र हैं, जैसे तुम हो। आने दो। सब लोग मिलकर आगे बढ़ो। चलो, आओ, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, मिलकर आगे बढ़ो। हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूं। आगे बढ़ो। हाँ, आगे बढ़ो। हाँ। विट्ठल मंदिर में सभी जातियों के लोगों का प्रवेश एक अभूतपूर्व घटना थी, परंतु पतित पावन मंदिर में प्रत्येक व्यक्ति भगवान के चरण स्पर्श भी कर सकता है। इसकी तो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पतित पावन मंदिर में शंकराचार्य जी के गले में एक मैला ढोने वाले ने फूल माला भी पहनाई, और यह सब कुछ सेठ भागोजी कीर के कारण हुआ। ये आप क्या कह रहे हैं? यहाँ रत्नागिरी में जो कुछ हो रहा है आपकी ही प्रेरणा से हो रहा है। सेठ जी सच कह रहे हैं। आपने जाति भेद का विचार किए बिना बच्चों को शिक्षा दी, सहभोज आयोजित किए। आपने तात्या राव लोगों की मानसिकता ही बदल दी। आपका स्वागत करके मैं बहुत प्रसन्न हूं। मैं खुद चलकर आपको लेने आता, परंतु अस्वस्थ होने के कारण नहीं आ सका। इतने वर्षों बाद आपसे भेंट करके मुझे भी अच्छा लग रहा है। लंदन में मिले थे, वो दशहरे का दिन था। हाँ, तब वहां इंडिया हाउस में भी आपके स्वागत का सुअवसर प्राप्त हुआ था। बहुत समय बीत गया। आपने रत्नागिरी में हरिजन उद्धार का जो काम किया वो बहुत प्रशंसनीय है। हरिजन? हाँ, मेरे विचार से शूद्र शब्द का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए। उसकी जगह हरिजन कहना ठीक है। हरिजन तो हम सभी हैं। उन्हें वापस लाने की कोई जरूरत नहीं है। उन्हें वापस आना भी नहीं चाहिए। सोच समझकर
भले बुरे का विचार करके अगर कोई व्यक्ति हिंदुत्व को अपनाना चाहे तो उसे वापस अपने मूल धर्म में आने की स्वतंत्रता क्यों ना दी जाए। हमारे धर्म के लोग कुछ ऐसी परिस्थितियों में घिर गए हैं कि दूसरे धर्मों के अनुयायी उन्हें अपने बराबर आने का लालच देकर धर्म परिवर्तन पर मजबूर कर देते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, जिन प्रथाओं ने हमारे बीच ऊंच नीच का भाव लाया है, अब उनका कोई उपयोग नहीं है। मैंने उनके पुतले जला दिए हैं। इस प्रकार तो हिंसा बढ़ेगी। यह हिंसा नहीं, संघर्ष है। संघर्ष और क्रांति से नई उपयोगी व्यवस्था का जन्म होगा। आप भी तो स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं, क्या उसकी कोई सार्थकता नहीं? मेरा आग्रह इस बात पर है कि आजादी उचित और नैतिक साधनों से प्राप्त हो, लोग अहिंसा के मार्ग पर चलें। इतने विशाल देश को स्वाधीन कराना है। शत्रु भयंकर साधन संपन्न है, उसका सामना बिना हथियारों के कैसे संभव है? शत्रु के पास इतने ज्यादा हथियार हैं कि हम अपने थोड़े से हथियार लेकर उनके साथ बिल्कुल लड़ाई नहीं लड़ सकते। और फिर केवल इसी कारण मैं अहिंसा के मार्ग पर नहीं चल रहा। मेरा विश्वास है कि अहिंसा पूर्वक बर्ताव करने से हिंसक मनुष्य का हृदय परिवर्तन होगा। यदि एक गाल पर तमाचा खाने के बाद हम दूसरा गाल पेश करेंगे तो हमें दूसरे तमाचे के स्थान पर स्नेह मिलेगा। आपकी बात मनुष्यों के संबंध में सच हो सकती है, परंतु राक्षसों और पशुओं से ऐसी अपेक्षा नहीं की जा सकती। जिन हत्यारों ने जलियांवाला बाग में सैकड़ों निर्दोष निरपराध लोगों को गोलियों से भून डाला, उन्हें दूसरा अवसर नहीं दिया जा सकता। श्री कृष्ण को अंत में कंस और शिशुपाल का वध करना ही पड़ा। देश की रक्षा के लिए सेनाएं तो चाहिए। संपूर्ण अहिंसा का लक्ष्य असंभव है। महान लक्ष्य चाहे कितनी दूर हो, उसे सामने रख करके ही हम उसके निकट कहीं पहुंच सकते हैं। हमें उसकी ओर चलना है, उसी ओर चलना है। मुझे लगता है हम कई बातों में एक दूसरे से सहमत नहीं हैं, परंतु सावरकर, मुझे इतना अधिकार तो है कि अहिंसा का प्रयोग करूं। अपने निजी प्रयोग के तराजू में पूरे राष्ट्र को रखने से पहले राष्ट्र के हित और अहित की बात जरूर सोच लेनी चाहिए। मुझे आशा है हम फिर मिलेंगे और बातें करेंगे। विभाजित होकर भी ये देश अनेक अर्थों में एक जीव, एक राष्ट्र, एक छत्र बन गया है। केवल सिंधु नदी ही इससे अलग हुई है। जब तक एक भी हिंदू जीवित है, हम उसे नहीं भूलेंगे। इस दुनिया में यदि हमें हिंदू राष्ट्र के नाते स्वाभिमान से जीवन जीना है, तो उसका हमें पूरा अधिकार है, और वो राष्ट्र हिंदू राष्ट्र के नाम से स्थापित होगा। इस पीढ़ी में नहीं तो अगली पीढ़ी में मेरी यह महत्वाकांक्षा अवश्य सत्य सिद्ध होगी। यदि वो गलत साबित हुई तो मैं पागल कहलाऊंगा, और सत्य सिद्ध हुई तो लोग मुझे दृष्टा कहेंगे। मैं अपना ये उत्तराधिकार तुम्हें सौंप रहा हूं। আলোর সন্ধানে ইউটিউব চ্যানেলের প্রোগ্রামগুলো যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে আপনারা লাইক করে, কমেন্ট করে এবং শেয়ার করে চ্যানেলটিকে ধন্য করবেন। নতুন নতুন ভিডিও পেতে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন।